Okay, so now today we'll start the next section, can say, okay, which is the inverse Laplace transform. But before this, you must know all the formulas of the Laplace transform. So I quickly go through that first, and then we'll directly move to the inverse Laplace transform. Okay, so this is one table. Okay, so now here we will just change the role of Laplace. मीन्स ये जो यल आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, इसको बस मैं राइट साइड में शिफ्ट करने वाला हूँ. ओके है ना, दैट इट मीन्स if Laplace transform of f of t is capital F of s. Now so the obvious definition for the inverse Laplace transform is what? Just multiplied by L inverse. Okay, then you will get f of t is equal to L inverse of f of s, capital F of s. So the L inverse of f of s is now f of t. तो अभी आपके पास f of s given होगा. Okay, so now we have a function of s, and from this we have to calculate the f of t. That is called as inverse Laplace transform. ठीक है, तो यही सारे फॉर्मूलेज आने वाले, सिमिलर फॉर्मूलेज आर देयर. ओके, जैसे आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में याद रखते हो ना, अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो इजीली आप उसके इसमें इंटीग्रेशन भी याद रख सकते हो. इन अ सिमिलर वे नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस Laplace transform and inverse Laplace transform. Okay, so if you know the Laplace transform, then only you can write a formula corresponding to inverse Laplace transform. Okay, so I quickly revise all these formulas. So Laplace of e raised to at into f of t. Okay, what is this? So it is f of s minus a. So now onward the Laplace of f of s in L inverse of this, okay, is equal to e raised to at into f of t. Okay, so right now just focus on this Laplace formula. Okay, we'll explain the corresponding inverse Laplace formulas. Now the Laplace transform of this g of t, which is the shifting of your function f of t at x is equal to a, and that Laplace is e raised to minus as into f of s. Next is Laplace of f of at, is actually called a change of scale property, which is 1 by a f of s by a. Correct? Just 1 minute. And now next is the Laplace of derivative. The Laplace of derivative is actually s capital F of s minus f of 0, like that. The Laplace of integral, okay, provided your limits from 0 to t, it's f of s upon s. The Laplace of multiplication by t is actually minus 1 raised to n, d raised to n, ds raised to n of f of s. And Laplace of f of t upon t, it's integration from s to infinity capital F of s ds. Okay, yeah, ठीक है. And now okay, let us start the inverse Laplace transform. तो जो एक टेबल मैंने आपको दिखाया था, ओके, just try to remember all those formulas. And now our next topic is inverse Laplace transform. Okay, so earlier we have discussed about the Laplace transform of any given function, that is f of t. However, okay, however, only Laplace transform of f of t is not sufficient to discuss its application. Okay, okay, later on you will understand why we need this inverse Laplace transform. Okay, so and we need to obtain inverse Laplace transform of a given function in a frequency domain. Okay, so because sometimes, okay, we need to calculate this f of t. Okay, and for that purpose especially here we define this inverse Laplace transform. Similar way में जैसे डेरिवेटिव आपने डिफाइन किया था, फिर आपने इंटीग्रेशन डिफाइन किया था. ठीक है, सो व्हाई वी नीड बोथ थिंग्स, क्योंकि इंडिविजुअली हर एक का एक एप्लीकेशन होता है ना. कुछ जगह पे आपको इंटीग्रेशन चाहिए, कुछ जगह पे आपको डेरिवेटिव चाहिए. सो इन अ सिमिलर वे नाउ वी define here the inverse Laplace transform, and later on you will find a relation between the Laplace transform and inverse Laplace transform. Actually कैसे यूज होता है वो भी आपको सिलेबस में. ठीक है, so this is your definition of Laplace transform. So if the Laplace of f of t is capital F of s, then the that is denoted by L of f of t is f of s, then this f of t is actually called as the inverse Laplace transform, and symbolically it is defined as L inverse of capital F of s. Just shift this L to here, and the L inverse of capital F of s is f of t. Okay, इतना बस याद रखो. अभी आपके पास यहाँ पे capital F of s आने वाला है, and from capital F of s से आपको corresponding function calculate करना है. ठीक है, so this L inverse is called as inverse Laplace operator. Okay, so or inverse Laplace transform. ठीक है, now
जैसे आपने लैप्लास के केस में आपने एक लिनियरिटी प्रॉपर्टी लर्न की थी, इन अ सिमिलर वे now you can apply that same linearity property in case of inverse Laplace transform. Okay, so if C1 and C2 are any two constants and capital F1 of S and capital F2 of S, let us take these two, the Laplace transform of the functions F1 of t and F2 of t. Okay, then we have the inverse Laplace transform of C1 capital F1s plus C2 capital F2s is equal to, you can take those constant outside to this inverse Laplace transform. So all these properties can be प्रूव ओके यूजिंग दी लैप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, क्योंकि आप बस क्या कर रहे हो, यल को राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, और मल्टीप्लाइंग बाय इनवर्स ऑपरेटर, ठीक है. तो इसलिए प्रूफ आपका एक्चुअली इसके पीछे लैप्लास का ही प्रूफ होता है. ओके, द लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फ्रॉम दैट आल्सो यू कैन राइट दिस. जैसे आपको पता है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस. ओके, दिस इज इक्विवेलेंट टू द एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस. सो जस्ट using this you can easily prove all the properties of the inverse Laplace transform. यहाँ पे किसी केस में भी प्रूफ नहीं देने वाला, क्योंकि सारे प्रूफ ऑलरेडी मैंने आपको लैप्लास में दे दिए थे. उसी वही प्रूफ आपको रिपीट करना है, बट यहाँ पे बस यल को यहाँ पे शिफ्ट करना है. आगे आपको और बाकी जो टेबल जो मैंने आपको दिखा था उसमें क्या क्या चेंज होने वाला है मैं आपको वो दिखाता हूँ. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. इन केस ऑफ इनवर्स Laplace transform also you can take those constant outside to the inverse Laplace operator. Okay, also you can separate the inverse Laplace transform with the addition or with the subtraction. ठीक है, and in other words inverse Laplace transform is actually a linear transform, है ना. Now so in our syllabus actually there are these three methods using which we can find the inverse Laplace transform. जो first method है, जो अभी मैंने आपको एक टेबल दिखाया था, okay, using that table in first case we will find the inverse Laplace transform. तो हर एक फॉर्मूला जो आपने लैप्लास में लर्न किया है, आपको उस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग इनवर्स का भी एक फॉर्मूला लर्न करना है, एंड ऑल्सो विल सी सम एग्जांपल्स ऑन दैट, है ना. सो अगेन इन दिस टॉपिक इट्स formulas are not difficult, okay, but if you know the correct formula to solve that particular example, then that calculation is not difficult. Okay, difficult part is what the identification, okay, which formula you have to apply here, okay, to find the corresponding inverse Laplace transform or corresponding to Laplace transform. Okay, as far as Laplace is concerned, that part is also not that much difficult, but if you consider the same case in inverse Laplace transform, then you need some you need to do some workout on that, or you need to understand how that problem will be solved using the properties of inverse Laplace transform. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन में कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्टी आ सकती है, इसलिए क्वेश्चन पे आप अच्छे से फोकस करो. ओके, उसका आंसर मैंने आपको पहले मतलब ये बार बार मैं बोलता हूँ कि दैट पार्ट इज मतलब वो ऐसा पार्ट है ना, आप खुद भी वर्कआउट कर सकते हो. ओके, दैट इज नॉट माय रोल. ओके, उसमें कुछ ज़्यादा मेरा रोल नहीं आता कि वो सॉल्यूशन कैसे एक्सप्लेन करना है. ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, हाउ यू आइडेंटिफाई, हाउ यू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला. ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आती है तो ही आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट. यूजिंग अ टेबल वी कैन फाइंड द इनवर्स Laplace transform. स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज आर देयर, विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. नेक्स्ट इज okay, there is one theorem, use of theorems of inverse Laplace transform, we'll see that also. And third section is partial fraction. ठीक है, तो अभी इस टॉपिक में आपको पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक भी अच्छे से समझ में आएगा. मे बी शायद यूनिट 1 में मैंने नहीं लिया था, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल अबाउट दैट पार्शियल फ्रैक्शन. मैंने शायद कुछ स्टूडेंट को फॉर्मूला ही दिया था, बट अभी इस केस में आप वो इन डिटेल में ही लर्न करने वाले हो, है ना. पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एनी गिवन फंक्शन. Okay, that same logic you can use in case of linear differential equation also. ठीक है, okay. Now, so let us go one by one. अभी मैं ये जो टेबल देने वाला हूँ, मैं सेम टेबल कंसिडर कर रहा हूँ जो लैप्लास में मैंने आपको दिया था, बट लिखते समय मैं रिवर्स में लिखने वाला हूँ. ओके, या जो टेबल है उससे पहले जो मैंने स्टैंडर्ड फंक्शन के जो लैप्लास आपको मैंने दिए थे. ओके, फर्स्ट विल स्टार्ट विद दी Laplace transform of standard function. Laplace transform of standard function. Okay, so can anyone tell me what is the Laplace of 1? Anyone? What is the Laplace of 1? Anyone? Just say it loudly. What is the Laplace transform of 1? Yes? See, I want answer from your side. Okay, मैंने आपको पहले बोला कि रॉन्ग आने दो, बट बोलो. ओके, आप खुद ये सोचो कि मतलब पूरा सेमेस्टर हो जाएगा और आपने एक आंसर भी नहीं दिया, तो हाउ यू फील इन दैट केस. यस, एनीवन? व्हाट इज द लैप्लास ऑफ 1?
लैप्लास ऑफ 1 क्या है? यस, व्हाट इज द लैप्लास ऑफ 1? 1 by s, करेक्ट. ओके, सो द लैप्लास ऑफ 1 इज 1 अपॉन s. ठीक है, देन द इनवर्स ऑफ द लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s, मतलब 1 अपॉन s का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है? 1. वही आपका फर्स्ट फॉर्मूला है. ठीक है, सो इफ माय फंक्शन इज 1 अपॉन s देन इट्स L इनवर्स, तो L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s इज 1. इसलिए मैंने आपको बोला था किसी भी केस में यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं देने वाला, क्योंकि ऑलरेडी प्रूफ हमने डिस्कस किया था. तो आप अगर आप लैप्लास कैलकुलेट करते हो तो इनवर्स का फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाता है. ओके, सो 1 अपॉन s का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आने वाला है 1. ठीक है, हाँ. सिमिलरली लैप्लास ऑफ e रेस टू at, मैं बस आपको लॉजिक बोल रहा हूँ कि ये केस मैंने सारा लिखा है. लैप्लास ऑफ 1 अपॉन e रेस टू at का लैप्लास क्या आता है? 1 अपॉन s माइनस a. सो द L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a, मतलब यह सिंपली 1 अपॉन s माइनस a का लैप्लास इनवर्स लैप्लास क्या आने वाला है? सो द L इनवर्स ऑफ दिस इज एक्चुअली e रेस टू at. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास साइन 80 का लैप्लास था, है ना. सो लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 इज एक्चुअली a अपॉन आई थिंक s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, करेक्ट. सो द इनवर्स, मतलब इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, L इनवर्स ऑफ दिस, बट यहाँ पे क्या होगा? ये ये स्मॉल एक कांस्टेंट है, इट मीन्स यू कैन टेक आउटसाइड टू दिस पार्ट दिस टर्म, तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय a होगा, वो इसके नीचे आ जाएगा. सो सिंपली द लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज एक्चुअली द साइन ऑफ 80 अपॉन a. ठीक है, इसलिए कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लैप्लास का फॉर्मूला पता है तो बस मैं वो यूज करके इनवर्स का लिखने वाला. सो नाउ ऑनवर्ड्स रिमेंबर दिस फॉर्मूला 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो लैप्लास है वो क्या है? 1 बाय a साइन ऑफ 80. यस, सो 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ओके, तो ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? इज इट करेक्ट? क्या मिस्टेक है इसमें? अब ये सेम तो नहीं होगा, मतलब कहीं पे तो टाइपिंग मिस्टेक है. सो व्हाट इज दैट मिस्टेक? क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए वहां पे? कैन एनीवन करेक्ट? हाँ, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक है, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक में नीचे प्लस नहीं आता, नीचे माइनस आता है, इतना याद रखो. ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है, हाइपरबोलिक में नीचे माइनस आता है. तो 1 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक ऑफ 80 इज एक्चुअली so the inverse Laplace transform of 1 upon s square minus a square is 1 upon a sin hyperbolic of 80. I will correct this formula. Okay, इसलिए मैंने जो PDF दी थी आप वो अभी के लिए रेफर करो, बट उसमें करेक्शन करके मैं आपको एंड में भी एक बार फिर से फॉरवर्ड करता हूँ. सो दिस विल बी द साइन हाइपरबोलिक ऑफ 80. कम टू नेक्स्ट. हाँ, ये एक अपने ये मतलब ये जो टेबल अभी आपको मैं दे रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है. सो नेक्स्ट इज 1 अपॉन s रेस टू n, s रेस टू n प्लस 1 का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो इट इज एक्चुअली t रेस टू n अपॉन n फैक्टोरियल, बट इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस. यही याद रखो, बिकॉज दिस इज इन जनरल फॉर्मूला. ओके, इसमें कंडीशन क्या है कि n मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, तो ज़्यादा कुछ मतलब इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस जनरलाइज फॉर्मूला. सो 1 अपॉन s रेस टू एनी पावर, 1 अपॉन s रेस टू एनी पावर का, क्योंकि 1 अपॉन s रेस टू 1 का तो 1 ही है. When power is 1, that Laplace inverse is 1. When that power is greater than 1, in that case your formula is t raised to this power minus 1. तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इनवर्स कैलकुलेट करना है 1 अपॉन एस क्यूब, तो फॉर्मूला क्या आता है? पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज टी स्क्वायर अपॉन गैमा ऑफ 3. ओके, बट गैमा ऑफ 3 इज 2 फैक्टोरियल एज इट इज अ इंटीजर. ओके, गैमा ऑफ n क्या होता है? n माइनस 1 फैक्टोरियल, सो 2 फैक्टोरियल. दिस इज योर आंसर, है ना. Okay, so this is the inverse of 1 upon s raised to n plus 1. Now in a similar way, अगर यहाँ पे ऊपर s आता है ना, because the Laplace transform of cos of 80 is this s upon s square plus s square. So the inverse of this is actually cos of 80. अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे मैं माइनस रखता हूँ, then it become the cos hyperbolic of 80. Okay, so I hope this table is clear to everyone. Okay, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया. अगर आपको लैप्लास के फॉर्मूले याद है तो ही आपको ये याद हो जाएंगे. ठीक है, तो याद रखो 1 अपॉन s का इनवर्स आता है 1 अपॉन s माइनस a का e रेस टू 80 s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर. ये तो मुझे लग रहा है कि आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे. ओके, यही एक याद रखो एक्स्ट्रा 1 अपॉन s रेस टू n प्लस 1 इज एक्चुअली t रेस टू n अपॉन गैमा ऑफ n प्लस 1. ओके, नाउ आई विल स्किप दिस.
नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट या. सो नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑन दिस. ठीक है, अभी मुझे आंसर आपसे चाहिए. रॉन्ग आने तो जितने बार आप रॉन्ग बोलोगे ना उतने बार मैं आपको करेक्ट कर सकता हूँ. दैट कंसेप्ट विल बी क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन. मीन्स व्हाट? कैलकुलेट द एल इनवर्स ऑफ, लेट अस टेक द फर्स्ट s plus 7. बोलो sorry 4 ना 4. But we know that in case of inverse Laplace transform also you can take those constants outside to that inverse Laplace transform. So this can be written as 4 into Laplace inverse of 1 upon s plus 7. Can you tell me what is the final answer? So 4. Now what is value of this? L inverse of 1 upon s plus 7. Say it loudly. What is value of this? Yes? Very good. e रेज टू माइनस 70. क्योंकि अभी मैंने आपको एक रिजल्ट दिया था और ये आपको याद कैसे रखना है? पता है कि आपको लैप्लास याद रखना है. आपको क्या पता है कि लैप्लास ऑफ e रेज टू 8 इज 1 अपॉन s माइनस a. तो जैसे ही 1 अपॉन s माइनस a के फॉर्मूला टर्म आता है आपको पता है कि क्या आने वाला है उसके करस्पॉन्डिंग. नो नीड टू रिमेंबर दिस इनवर्स लैप्लास फॉर्मूला सेपरेटली. इफ यू नो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये दिमाग में आपको कैलकुलेट करके वो आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे अपोजिट साइन आता है तो प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आने वाला है. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट. Okay, correct. Now let me take second. So question 2, the inverse Laplace of 1 upon 3s minus 2. Can anyone tell me the steps? क्या करना होगा मुझे? How I calculate the Laplace inverse of 3s 1 upon 3s minus 2? बोलो. Yes. गुड. क्योंकि आपके पास एट द एंड 1 अपॉन s माइनस ए का ही लैप्लास है, लैप्लास इनवर्स है सॉरी. तो इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना होगा सो दैट आई कैन राइट दैट वैल्यू टू बी e रेज टू 80. सो हियर फर्स्ट आई विल टेक दैट 3 कॉमन. ओके, सॉरी 1/3 कॉमन. एंड इफ आई टेक दैट 3 कॉमन आई कैन टेक दैट 3 डायरेक्टली आउटसाइड टू द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो दिस बिकम 1/3 टाइम्स लैप्लास इनवर्स ऑफ, because it is a constant you can take outside to this inverse Laplace transform. In bracket what we have here, you will get s minus 2/3. Okay, and now we have that formula. Okay. So the inverse Laplace of 1 upon s minus a is actually e raised to 80, means e raised to 2/3 into t. Okay, this is the answer of question number 2. Now come to third. The Laplace inverse of 3s minus 12 upon s square plus 9. Okay, tell me how you solve this. Yes, बोलो. Okay, so separate this. Okay, it means what? Separate this with respect to this minus sign. So this can be written as 3s upon s square plus 9 minus, okay, 12 upon s square plus 9. And again you can take this constant outside. तो मैं 3 बाहर लेता हूँ. and L inverse of s upon s square plus 9 क्या आता है? L inverse of s upon s square plus 9. आपको क्या सोचना है कि कौन से फंक्शन का लैप्लास s upon s square plus 9 आता है? कौन से फंक्शन का लैप्लास? which function has a Laplace transform to be s upon s square plus 9? बोलो. कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका लैप्लास s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 आता है? क्या लिखूं? cos 3t. गुड. ठीक है. नाउ माइनस दिस 12 इज कांस्टेंट, यू कैन टेक आउटसाइड. अभी मुझे बोलो कि कौन सा फंक्शन है जिसका लैप्लास 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 आता है. अभी 1 तो नहीं आएगा ऊपर वो क्या आता है? जनरली कांस्टेंट आता है ना. तो 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 9 से वो आप देखो और मुझे बोलो क्या एडजस्टमेंट करनी होगी. L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 9. तो 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 9 ये कौन से केस में जनरेट होता है? सो इफ यू कंसिडर हियर a मीन्स 3, सो a अपॉन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो लैप्लास है वो क्या आता है? साइन ऑफ 3t. ये आपको पता ही है. साइन ऑफ 3t क्या होता है? लैप्लास, सॉरी, हाँ क्या करेक्ट लिखा है ना मैंने?
सॉरी ये एल इनवर्स लिखना था, ठीक है, ये याद लिखता हूँ एल इन ब्रैकेट. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 3t और साइन ऑफ 8t इज a अपॉन s स्क्वायर प्लस 9. तो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा इसका, सो द एल इनवर्स ऑफ 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 इज साइन ऑफ 3t. बट आपको ये कांस्टेंट यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ये कांस्टेंट नीचे आ जाएगा, ठीक है. सो द लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 इज एक्चुअली साइन 3t डिवाइडेड बाई 3. और मैंने आपको दिया था फॉर्मूला 1 अपॉन ए साइन ऑफ 3t, ठीक है. सो दिस बिकम 4 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर. आई विल नॉट सिंप्लीफाई दैट, ठीक है. सो दैट आंसर इज ऑल्सो देयर. ओके, या come to next. Now find the inverse Laplace transform of this following function. One by one आपको बोलना है. First case में, now tell me quickly what is the inverse of this 12 upon 4 minus 3s. बोलो. सिमिलर टाइप की क्वेश्चन ले रहा हूँ, मतलब और फिर बाद में हम टेबल से स्टार्ट करते हैं. यस, एनीवन? Other students are there or not? Yes, Omkar, are you there? 304 Omkar. Yes, sir. हाँ, can you tell me what is the Laplace inverse of this? ओके, आप ये तो बोल सकते हो कि 1 अपॉन एस माइनस ए का लैप्लास इनवर्स क्या होता है, क्या होता है? हाँ, ई रेस टू 80. गुड, ठीक है. तो मुझे इस टर्म को इस फॉर्म में लेके आना है. आई वॉन्ट हियर एस माइनस ए. तो यहाँ पे 4 माइनस 3s आ रहा, तो पहले तो मुझे माइनस बाहर लेना होगा, करेक्ट. सो दैट हियर आई विल गेट 3s माइनस 4. बट मुझे आगे भी क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एस ही चाहिए, तो मुझे 3 भी बाहर लेना होगा. ओके, तो आगे मैं क्या लेता हूँ, माइनस 1/3 बाहर लेता हूँ. देन आई विल गेट दिस 12 अपॉन दिस s माइनस 4/3. दिस बिकम 4. सो एट द एंड वी हैव माइनस 1/4 1 अपॉन s माइनस 4/3. अभी आपको लेना है इसका इनवर्स, है ना. सो लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज एक्चुअली दी लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस, एंड विच इज इक्वल टू माइनस 1/4. तो कॉन्स्टेंट बाहर आने वाला है, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ई रेस टू 4/3 इंटू टी. सो माइनस 1/4 इंटू ई रेस टू 4/3 इंटू टी. ये ऐसे आपको 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज आने वाले हैं, ठीक है. सो ओके, दिस आर ऑल योर फंक्शन. और फर्स्ट का आंसर क्या था, शायद हाँ 4, ये शायद ऊपर था, है ना. करेक्ट, मैंने मिस्टेक की थी. या करेक्ट, इट इज करेक्ट. नाउ सेकंड, कैन यू जस्ट टेल मी द हिंट? आई जस्ट वांट द हिंट. मैं आप या दिस ऑल आर एक्चुअली द होमवर्क, मैंने सॉल्व करके देने वाला हूँ, बट थोड़े बहुत हिंट देने वाला. यस, फर्स्ट सेकंड में क्या करोगे, बस इतना बोलो मुझे. यस, सेकंड में क्या करोगे? ओके, आपने करेक्ट बोला कि सेपरेट करो पहले. सो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ये कॉस अल्फा क्या है? हाँ, वेरी गुड. तो ये कांस्टेंट है, ये बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए उन्होंने दिया है, उसका कुछ भी रोल नहीं है. एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन अल्फा, ठीक है. तो जब आप इसका इन्वर्स लोगे तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर ही रहेगा. इसका ही इन्वर्स आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर ही रहेगा. यस ऊपर आता है तो इट इज एक्चुअली कॉस ऑफ 80, यानी अगर W कांस्टेंट ऊपर आता है तो इट इज एक्चुअली साइन ऑफ ओमेगा टी एंड मल्टीप्लाई बाय द साइन अल्फा कॉस अल्फा एज इट इज, ठीक है. सो अगेन दिस इज द होमवर्क, यू हैव टू ट्राई दिस. ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, मैं बस हिंट दे रहा हूँ. नेक्स्ट इज 1 अपॉन एस रेस टू 5. इसका तो मैंने आपको डायरेक्टली बोला है. टी रेस टू दिस पावर माइनस 1 मीन्स 4 अपॉन गैमा ऑफ दिस सेम पावर. सो इट इज एक्चुअली टी रेस टू 4 अपॉन t raised to 4 upon 5 means 4 factorial, ठीक है. सो 24. नेक्स्ट, ये भी हुआ था. यहाँ पे क्या करना है, सेपरेट करो. 4s अपॉन 16s स्क्वायर माइनस 25 प्लस 15 अपॉन 16s स्क्वायर माइनस 25. Now what we can do here,
ओके एक और रिजल्ट है, जस्ट लेट मी चेक। ओके वो शायद आगे आने वाला है, प्रॉपर्टी का एफ ऑफ 80 का भी रिजल्ट यूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए ठीक है, अभी मैं बाहर ही लेके करता हूँ। तो यहाँ पे 4 नीचे से 16 बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो इन ब्रैकेट व्हाट वी हैव s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ये 25 अपॉन 16 इज एक्चुअली 5/4 स्क्वायर, है ना। और ये 15 वैसे ही, नीचे 16 वैसे ही, एंड ये 1 अपॉन हियर यू विल गेट s स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर, है ना। तो इसका क्या आता है, यस ऊपर है, सो इट इज़ एक्चुअली cos ऑफ 80, सो cos ऑफ 5/4 80, और इसका 1 ऊपर है, कांस्टेंट ऊपर है, तो इसका क्या आता है 1/a, सो 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है 5/4, सो 1/5/4 इंटू साइन ऑफ 80, सो 5/4 इंटू t। ओके यू कैन कंप्लीट दिस, ज़्यादा कुछ इन डिटेल में नहीं जाने वाला, यू कैन कंप्लीट दिस, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आप चेक करो, आंसर भी रॉन्ग आ सकते हैं, क्योंकि ओके टाइप करते समय कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 अपॉन s रेज़ टू 9/2। मुझे बस हिंट बोलो क्या क्या करना है लास्ट क्वेश्चन में। यस व्हाट वी कैन डू हियर, यहाँ पे क्या करना है लास्ट में, यस कैसे सॉल्व करोगे, लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस, बोलो। आपके पास रिजल्ट कौन से केस में, लैप्लास इनवर्स ऑफ s रेज़ टू n का रिजल्ट आपके पास है ही, s रेज़ टू n प्लस 1 का, ठीक है। तो क्या करो, सबको डिवाइड करो, सो दिस कैन बी रिटन एज s स्क्वायर अपॉन s रेज़ टू 9/2 प्लस, एक्चुअली लैप्लास भी सेपरेट कर सकते हो, सो लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s रेज़ टू 9/2 प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज़ टू 9/2। अभी ये तो हो जाएगा, ये तो लास्ट हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट है। सेकंड में क्या करो, ये s नीचे एडजस्ट करो, तो ये क्या बन जाएगा L इनवर्स ऑफ, अभी देखो s स्क्वायर नीचे आता है तो क्या होगा 9/2 माइनस 2, सो दिस बिकम 1 अपॉन s रेज़ टू 9/2 माइनस 2 इज करेक्ट लिखा है ना, हाँ 9/2 माइनस 2 इज व्हाट 5/2 प्लस L इनवर्स ऑफ 9/2 minus 1 is actually 7/2 and plus L inverse of 1 upon s raised to 9/2, और रिजल्ट आपका क्या है 1 upon s raised to n plus 1 का रिजल्ट क्या है t raised to this power minus 1, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो एंड gamma of that same power, ओके। तो किसी एक में लिख के देता हूँ, तो इसका क्या आ जाएगा t raised to this power minus 1, 5/2 minus 1 is 3/2 डिवाइड बाई गैमा ऑफ 5/2। अभी गैमा ऑफ 5/2 कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, ओके। क्या कैसे कैलकुलेट होगा गैमा ऑफ 5/2, एनीवन, हाउ यू कैलकुलेट गैमा ऑफ 5/2, एनीवन, गैमा ऑफ 5/2 का आंसर क्या है या कैसे कैलकुलेट होगा, बोलो जल्दी जल्दी। हाउ यू फाइंड वैल्यू ऑफ गैमा ऑफ 5/2, ये ट्रिवियल क्वेश्चन, हाँ हाँ, तो -1 करके मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखो पहले 3/2, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आता है 1/2, और जैसे 1/2 आता है रूट पाई रख दो, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। सीक्वेंस आपकी क्या है बेसिकली 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2 लाइक दैट। तो अगर 9/2 क्या कैलकुलेट करना है तो 9/2 का क्या आता है इन सब का मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लाई बाय रूट पाई, ठीक है। ओके सो नाउ इट इज होमवर्क, दिस ऑल क्वेश्चंस आर होमवर्क, ओके। आप कंप्लीट करो, आंसर है अगर कुछ मिस्टेक्स है तो आप करेक्ट भी करो, ओके। आई एम नॉट सेइंग दैट ये सारे आंसर्स करेक्ट ही है, बट ऑलमोस्ट दिस आंसर्स आर करेक्ट, बट इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक मुझे भी बोलो और आप करेक्ट करके लिखो डायरेक्टली, ठीक है। Now, so this first section is on the, you can say the Laplace transform of standard function. Okay. Now, one by one we'll discuss the properties of inverse Laplace transform. ठीक है, हाँ। तो जितना अभी आपने लैप्लास में लर्न किया था, एक मतलब आपको पता है 2-3 लेक्चर में बस हम वो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, टी रेज़ टू n की प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, लाइक दैट। तो वह हर एक प्रॉपर्टी अभी आपको इन्वर्स के केस में कंसिडर करनी है, दैट इज द आइडिया, है ना। So let us
स्टार्ट फ्रॉम दी कितना है इसमें, ठीक है. सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस टेबल एंड देन विल स्टॉप. ओके ओके. सो नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टीज, बट आप ये याद रखो नेक्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. तो लैप्लास की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मीन्स लैप्लास ऑफ e रेज टू at f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस a. तो अभी आपको इनवर्स ऑफ f ऑफ s माइनस a याद रखना है. सो लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s माइनस a इज एक्चुअली e रेज टू at इंटू f ऑफ t. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f ऑफ t? यहाँ पे f ऑफ t का मीनिंग क्या लेना है? f ऑफ t का मीनिंग क्या लेना है कि यल इनवर्स ऑफ f ऑफ s. मतलब क्या? ओके मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे बोला आंसर क्या लिखना है. 1 अपॉन, सॉरी मुझे बस आंसर चाहिए आपसे. यस अपॉन यस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 16, इसका मुझे इनवर्स कैलकुलेट करना है. सॉरी s माइनस 2, s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 16 क्या आएगा बोलो? कैन एनीवन टेल मी द फाइनल आंसर डायरेक्टली? तो अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एस यस माइनस ए के फॉर्म में आता है, जैसे यहाँ पे जहाँ पे भी यस दिखाई दे रहा है वहाँ पे एस माइनस ए के फॉर्म में, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए. तो पहले तो आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन गिवन है. आपको एफ ऑफ एस गिवन है या आपको एफ ऑफ एस माइनस ए गिवन है. अगर एस माइनस ए गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है. ये फॉर्मूला क्या होता है? यस माइनस ए से आप यस में कैसे जाते हो? बस ई रेस टू ए टी लिखो. तो यहाँ पे ओके, इफ आई राइट हियर ई रेस टू 2t देन दिस बिकम लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16. अच्छे से फोकस करो, ये s माइनस ए का फंक्शन है. s माइनस ए से आप f ऑफ s में कैसे जाते हो? बाय जस्ट कंसिडरिंग e रेस टू at फैक्टर आउटसाइड टू द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो यहाँ पे e रेस टू 2t को मैंने बाहर लिखा है. जैसे आप ये लिखते हो ब्रैकेट में ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16. ओके, ये आपका होता है f ऑफ t. इसका भी कैलकुलेट करो. सो विच इज इक्वल टू e रेस टू 2t इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16. इट इज एक्चुअली cos ऑफ 4t. इज इट करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं? है आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस ओके, विल स्टॉप हियर टुडे. बट आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट प्रॉपर्टी. ओके ठीक है. सो विल डिस्कस वन बाय वन. हमें हर एक प्रॉपर्टी पे एग्जांपल भी डिस्कस करने हैं, बट आपको ये अभी इसके आगे थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन का पार्ट डिफिकल्ट होगा क्योंकि लैप्लास में स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट इनवर्स में आपको देखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एस का फंक्शन है या एफ ऑफ एस माइनस ए का फंक्शन है, लाइक दैट. ओके, सो आई थिंक हियर विल स्टॉप. नाउ यू कैन पुट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स फॉर द अटेंडेंस. कुछ डाउट्स है तो बोलो.